हेलो। इन दिस वीडियो हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर करेंगे वन शॉट में। देन ओके, लेट्स स्टार्ट। सो सेम स्ट्रेटजी वी विल फॉलो एज वी डिड in case of previous three chapters, I think. So let's start. So here is our first question. What are the roots of 3x square is equal to 6x? So in this case I will write simply 3x square 3x square minus 6x is equal to 0. So 3x is I'm taking common, x minus 2 is equal to 0. Then either 3x is equal to 0 or x minus 2 is equal to 0. So x is equal to 0 or x is equal to 2. Alright. So our correct options are 0 and 2. Alright, so next question. Question number 2. The nature of roots of quadratic equation this is. So मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ फॉर नेचर ऑफ रूट्स फॉर नेचर ऑफ रूट्स फॉर नेचर ऑफ roots, check for D, which is discriminant. Discriminant is equal to b square minus 4ac. b square minus 4ac for quadratic equation. Ax square plus bx plus c. All right. So for this quadratic equation, discriminant is equal to b square minus 4ac. So if D is positive, so roots are real and distinct. If D is equal to 0, so roots are real and equal. But if what I'm saying is ki if D is negative, then roots are imaginary. What? Imaginary. All right. So let's move to our question. In this case, and 9x square minus 6x minus 2 is equal to 0. So we will be checking for D. So 9x square minus 6x minus 2. Question number 2. Let me put here question number 2. 9x square minus 6x minus 2 is equal to 0 in our case. So for D we will be checking b square, which is minus 6 ka whole square minus 4 into a, which is 9 into minus 2. So D 36 plus 72. So it is 810. So it is greater than 0. So roots are real and distinct. So two distinct real roots is the right option here. Two distinct real roots is the correct option. Roots of the equation this are x square plus 3x minus 10. So it's clearly visible 2 and minus 5. It's clearly visible 2 and minus 5. You can check this. So which of the following are roots of the quadratic equation this? Which of the following are the roots of the quadratic equation this?
So again it is clearly visible, x square minus 4x minus 5x plus 20 is equal to 0. So x minus 4 minus 5 x minus 4. So 4 and 5 is the correct option if I am not wrong. Alright, so question number 5. If the roots of the equation this are of opposite sign, root ठीक है, opposite sign, then which of the following cannot be value of p? Which of the following are of opposite sign? Roots are of opposite sign. Okay. So it's clearly that roots are of opposite sign. So product of the roots should be negative. Product of the roots should be negative. Alright. So product of the root, which is, let me write it here. Question number 5. Let me throw it somewhere. Is it recording? Yeah. So let me throw it. Okay, then I think it's enough space. Question number 5 we have. Question number 5. Let me write it. Question number 5. What we have? 3x square plus 2x plus p plus 2 p minus 1 is equal to 0. Roots are of opposite sign. Not equal and opposite sign. They are not saying this. Roots are of opposite sign means one is positive, one is negative. ठीक है, तो सम जीरो नहीं ले लेना, क्योंकि वो इक्वल थोड़ी ना बोला, इक्वल एंड ऑफ अपोजिट साइन ऐसा थोड़ी बोला है उसने, खाली इतना बोला है कि रूट्स और ऑफ अपोजिट साइन। तो प्रोडक्ट हम लोग नेगेटिव ले सकते हैं। अपन प्रोडक्ट नेगेटिव ले सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज नेगेटिव विच इज लेस देन 0। ऑलराइट, so for this being negative, we should have p plus 2 p minus 1। p minus 1 अपॉन 3। तो p की वैल्यू आप रखो यहाँ पे। तो ये निगेटिव अगर हुआ तो फिर p प्लस 2 p माइनस 1, ये सारे ये पूरा नेगेटिव होना चाहिए, ये। तो आप क्रॉस चेक कर लो, वैल्यू क्रॉस चेक कर लो आप। बाकी इसका तो वैल्यू निकाला जा सकता है p का इनइक्वलिटीज में, बट आप चेक करोगे, जब आप चेक करोगे तो जीरो में ये नेगेटिव आएगा, जीरो में। तो ये क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैन नॉट बी वैल्यू ऑफ पी। तो जिसमें पॉजिटिव है इसमें, जीरो में तो ये नेगेटिव आएगा, और किस में देखना, और क्या ऑप्शन है, -1 है, -1 में देखना जा रहा, -1 में नेगेटिव आएगा, ठीक है।
-1 में 1/2 में देखना ज़रा, 1/2 में 1/2 ठीक है, 1/2 इसमें भी नेगेटिव आएगा। -3 में देखना ज़रा, -3 में -3 -1 -3 इसमें पॉजिटिव आ जा रहा है तो -3 p शुड नॉट इक्वल टू -3, तो -3 ही ऑप्शन होगा इसमें सही, -3 ही ऑप्शन ठीक है, क्योंकि कैन नॉट बी वैल्यू ऑफ पी पूछा। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पूछा है। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर होगी यार। क्वेश्चन नंबर 6 देखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ये बोल रहा है वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताना है फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 और मल्टीप्लाइड बाई के प्लस 1 एक्स, के प्लस 1 एक्स प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। इसके के की ऐसी वैल्यू बताना है इसको रखने पे ये क्या आ जाए, इक्वल रूट्स आ जाए। इसको और लंबा थ्रो करना पड़ेगा। तो ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, आई थिंक पिंक ले लेता हूँ। ठीक, तो इसका रूट्स जो है इक्वल होने के लिए, रूट्स इक्वल होने के लिए इसका जो है डी क्या होना चाहिए, डी शुड बी 0 फॉर रूट्स टू बी इक्वल, फॉर रूट्स टू बी इक्वल। आप यहाँ पे लिख लो फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स ठीक है, डी शुड बी 0 वैसे, फॉर इक्वल रूट्स फिर कॉमा देके डी इज इक्वल टू 0 लिखना चाहिए था, लेकिन आप लोग इसको करेक्ट कर लो। तो डी जो है 0 होना चाहिए। तो 2k+1 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए विच इज 1, इन दिस केस 1 c k square, that should be equal to 0, that should be equal to 0. So here we have 4 k square plus 2k plus 1 minus 4k square is equal to 0. So here we have 4k square plus 8k plus 4 minus 4k square is equal to 0. 4k square, 4k square got cancelled out. K is equal to minus 4/10, which is minus 1/2. K is equal to minus 1/2. Am I right? K is equal to minus 1/2. That will be the correct option. That will be the correct option. K is equal to -2. Question number 7. Question number 7. The values of k for which the quadratic equation, the value of k for which the quadratic equation, this has equal roots. Oh no यार, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखना जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखना जाएगा। डी शुड बी 0, यानी बी स्क्वायर विच इज के स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू 4 इंटू ए विच इज 2, विच इज 2 इंटू सी विच इज 2. सो के शुड बी +-4, +-4. ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 7 दैट वाज वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, which of the following is not a quadratic equation, which of the following is a not a quadratic equation. तो ये तो आपको चेक करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। बाकी मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है, मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है इसमें सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि एक तो बेचारा एक्स स्क्वायर, एक तो बेचारा इसमें बनेगा एक्स स्क्वायर समथिंग कुछ बनेगा। ठीक है, क्योंकि 2x स्क्वायर ये बनेगा, फिर
अंतिम में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज 3 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी 2√6x हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वो कैंसल आउट हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें कुछ एक्स स्क्वायर का कुछ मटेरियल बचेगा नहीं, तो सी तो मेरे को दिख रहा है। बाकी आप सब चेक कर लेना इसको, आप सब चेक नहीं, इसमें तो एक्स फोर कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर वाले मटेरियल्स तो बचेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट इक्वल इफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो तो रूट्स आर नॉट इक्वल, तो ठीक है, एसर्शन तो ठीक है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। तो ये देख लेना जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर विच इज 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 विच इज -4 नेगेटिव यानी नॉट रियल। तो एसर्शन रीजनिंग दोनों ट्रू है, एसर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर ट्रू, but R is not the correct explanation, so for question number 9 it is option B, for question number 10 एक सेकेंड, इसने ऑप्शन तो सही दिया है तो आर तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा ही, तो फिर क्या दिक्कत है। आर तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, एक्सप्लेनेशन तो इसने सही दिया है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, A is the correct option. For question number 10, the value of k, if one root of the quadratic equation is this, has two roots, ठीक है, the value of k is equal to 2, the value of k is equal to 2 if one root of the quadratic equation is this। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ इसको, 6x स्क्वायर नहीं, वो तो नहीं है, -x हैज़ टू रूट, 6x स्क्वायर -x माइनस k इज इक्वल टू 0, वन रूट दे दिया है, तो मैं इसको ऐसे चेक करता हूँ, 2/3 अल्फ़ा बीटा में पहले ले लेता हूँ c/a विच इज़ k/6 c/a यानी -k/6 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2/3 प्लस बी यहाँ से निकालो ना, 2/3 प्लस बी क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस बीटा ले लो, बीटा -b/a विच इज़ क्या हो जाएगा। एक सेकेंड यार, क्वेश्चन नंबर 10 सारा का सारा खिचड़ी हो गया ना, तो फिर इसलिए इसको यहाँ पे लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 सारा का सारा खिचड़ी हो गया ना। एसर्शन स्टेटमेंट क्या था, एसर्शन स्टेटमेंट यही है इसमें कि वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2, इफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज़ वन देन क्या बोल रहा है, इफ वन रूट इज 2/3, रीजनिंग क्या बोल रहा है, रीजनिंग ये बोल रहा है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, वेयर
ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसके टू रूट्स होंगे, टू रूट्स हैज टू रूट्स। ठीक है, तो सही बोल रहा है, इसमें क्या दिक्कत है, सही बोल रहा है। तो k इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू मैं चेक कर लेता हूँ, असर्शन चेक करते हैं हम लोग। तो मैं क्या देखा, x² + 2x, नहीं यार सॉरी, 6x² - x - k है, 6x² - x - k है। 6x² - x - k -x -k, ये है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 6x² -x - k इज इक्वल टू 0 है, ठीक है क्या। तो अल्फा प्लस बीटा मैं लगाता हूँ एक बार, अल्फा प्लस बीटा लगाता हूँ एक बार। तो 2/3 प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a विच इज -(1/6)। तो बीटा इज इक्वल टू, बीटा इज इक्वल टू 1/6, 1/6 -2/3 which is 4/6। so beta is equal to 1/6 -4/6 which will be -3/6 -4/6। ठीक है, तो बीटा इज इक्वल टू -1/2, बीटा इज इक्वल टू -1/2। तो अल्फ़ा बीटा यहाँ से मैं के की वैल्यू को टारगेट कर रहा हूँ, अल्फ़ा बीटा जो है हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा क्या है अपना 2/3, बीटा का है अपना -1/2 इज इक्वल टू C/A विच इज -k/6, तो ये हो जाएगा -2/6 इज इक्वल टू -k/6। तो k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2। इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए, डायरेक्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ लिखो वहाँ लिखो इसलिए लग गया मेरे को टाइम, आपको टाइम नहीं लगना। तो असर्शन रीजनिंग दोनों ट्रू है, बट ये कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना हुआ। तो 10 का बी इज द राइट आंसर, 10 का बी इज द राइट। So we are done with section. We are done with section 1. We are done with section 1 in 23 minutes. We solved this. Alright, so now we are moving to the next sections. Let me visible. So question number 11 is saying that for what value of k does the quadratic equation has equal roots? यही लगे हाथ इसको करता हूँ मैं, ठीक है। For what value of k does the quadratic equation has equal roots? तो इक्वल रूट्स यानी d को क्या कर दो, जीरो कर दो, d को जीरो कर दो, यानी b² इज इक्वल टू 4ac। तो b² क्या हो जाएगा अपने पास, -k² इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू क्या, 4 इंटू a कितना है, a कितना है 1, इंटू c कितना है 4। तो k प्लस इज इक्वल टू +-4, k इज इक्वल टू +-4, ठीक है क्या, k इज इक्वल टू +-4। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। सो अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² +2√2 x - 6। It's clearly visible that
3√2 2√2, ठीक है. When you subtract, it will be 3√2 minus 2√2, that will be 2√2, and on multiplying it will be 6. So I'm writing it as x square plus 3√2x minus 3√2x minus 2√2x minus 6. So here I'm taking common x plus 3√2 minus what I'm taking common here. I should take here, it's a √2. So I should take common minus of √2. So here x plus 3√2, x plus 3√2. So x plus 3√2 और x minus √2, x minus √2. तो x इज इक्वल टू माइनस 3√2 और √2. ये दो ऑप्शन अपने पास है. इफ 2 is the root of equation and the equation has equal roots, find the value of k. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13. क्या बोल रहा है? इफ 2 is a root of the equation x square plus kx plus 12 is equal to 0. if 2 is the root, ऐसे भी निकल सकता है ना, 2 is the root of the equation, then it will be 2 का square. just to put the 2 here, simple, 2 square plus 2k plus 12 is equal to 0. ऊपर के जो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन थे, उसको भी डायरेक्ट हम लोग ऐसे कर सकते थे. 2k plus 16 is equal to 0. k is equal to -8 if I am not wrong. k is equal to -8. So and the equation this has equal to, find the value of k. So x square it is what, plus kx which will be -8x प्लस की वो जो और इक्वेशन दिया है ना, दो इक्वेशन दिए हैं इस क्वेश्चन में, तो इसके इक्वल रूट्स बोल रहा है, इसके इक्वल रूट्स बोल रहा है. तो q की वैल्यू फाइंड करें. तो इक्वल रूट्स के लिए अपन क्या कर सकते हैं, b स्क्वायर विच इज 64 इज इक्वल टू, for equal roots d should be equal to 0, d should be equal to 0. so 64 is equal to b square is equal to 4 into a which is 1 into q. तो फिर q is equal to 16, am I right? q is equal to 16. Absolutely right. q is equal to 16. Question number 14. Solve the quadratic equation this for x. तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं, पहले इसको लिखते हैं इक्वेशन को. क्वेश्चन नंबर 14 है ना, क्वेश्चन नंबर 14 है.
एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ax प्लस प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखना जरा एक्स स्क्वायर माथा पच्ची सर मत पटको दीवार पे। इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर की ज़रूरत है जो कि दिया है माइनस बी स्क्वायर। ये एक पार्ट कर लो, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखना ज़रा ए स्क्वायर माइनस, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लगाओ, यक्स माइनस ए प्लस बी, यक्स माइनस ए प्लस बी, फिर यक्स माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो आइदर दिस विल बी 0 आइदर, तो यक्स इज इक्वल टू बी, सॉरी यक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी और यक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, x is equal to a plus b. Am I right? Question number 14 we are done with. Now section C. Now section C. Now section C. CD ये 5 क्वेश्चंस मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, या चलो सेक्शन सी कंप्लीट कर लेते हैं, सेक्शन सी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि मैं केस स्टडी वाले क्वेश्चंस इतने आसान होते हैं, इतने आसान होते हैं कि वो वन लाइनर में हो जाते हैं, ठीक है। जितना बड़ा क्वेश्चन उतने कम लाइन में हो जाएगा। तो सेक्शन सी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है।